میرا حسینیا ہنسی کے دل غلام اور دنیا میں جتنے میں سب کو مانتا ہوں بس انشاءاللہ ہم جو میرے محترم نے جو اعلان کیا انشاءاللہ ہم اس پہ کیا اعلان کیا یہ انہوں نے تقریباً وہ ختم کر دیا ہے کہ جہاد کی حدیث ہیں یا جہاد کی وہ تو ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ ملک شہادت کے لیے آئے ہم شہادت کے لیے آئے ہیں، شہادت کا جذبہ لے کے آئے ہیں. میرے محترم نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نہ کچھ کریں، صرف طریق لبیک کو حکم دیں کہ وہ فلسطین جائے اور ان کے حق کے لیے ان کی مدد کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے راستہ کھول دیا جائے، ہمیں وہاں پہنچا دیا جائے. یہ بھی کہتے ہیں جی رستہ کھول شہباز شریف صاحب کو میڈیا پہ آگے یہ بیان دینا چاہیے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ خان صاحب کو سود خور کو دیکھ لیں، عمران خان سود خور کو دیکھ لیں، وہ کیا کہتا ہے امریکہ نے فوج ہے ملک پاکستان کی، یہ دنیا میں بیسٹ دوسرے تیسرے نمبر پہ اچھی، یعنی کہ تو اگلی فوج سے مر جائے تو فلسطین تک ہم پہنچ ہی نہ پائیں. تو راستہ کھولے، ہم مرضی سے کھڑے ہو، اپنی مرضی سے سوتے ہو، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو، یہ بات نہ کرو. یہ محرم کا جی ٹھیک ہے، اس میں کربلا ہوئی تھی اور اسی میں یہ بھی کربلا چلے گی. اب صحیح ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا جس طرح یوتھیا ہوتا ہے، یہ وہ بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ کا ہاتھ نیچے رکھے. کوئی پی ٹی آئی کے نہیں ہے یا نون لیگ کے نہیں ہے، یہ بوریا بسترا باندھ کے ہے اور مرنے کے لیے تیار ہے. اور بھی اسی چیز کے اوپر آیا کہ امن ہونا چاہیے. ان کے ملکوں میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پی ایل پی والے آئے ہیں، یہ حکومت کی آنکھیں اور کان کھولنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی جاگو، ہماری آواز کا. یار میں چاہتا ہوں کہ کل کو میرا نام جو ہے آگ بجانے والوں میں ہو، آگ لگانے والوں میں اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے. دیکھیں مسلمانی ہے نا، بادشاہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کو بھی بچائیں. لگی ہے 10 ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں تو 100 ہم ادھر بھی مروا لیں، ایسا نہیں ہوتا. جو جہاد نہیں ہوگا تو امن کبھی بھی نہیں آئے گا. یہی تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہاں سے آگے نہیں گزر، ورنہ خود ذمہ دار ہوگا، ہم گزر جائیں گے انشاءاللہ. جی تو السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین میں کھڑا ہوں کہہ لیں کہ ڈبل روڈ بالکل چوک میں، اور یہاں پر کچھ بھی دکھا دیتا ہوں کہ ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دور تک جام ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو فیض آباد دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں طریقے لبیک کے ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ بستر ڈال کے سو گئے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس کی روک تھام کے لیے اقتدام کرنے ہوں گے. اور یہ اب دھرنا کب، کتنے دن اور کیسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اب لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ خطاب سن رہے ہیں اور ان کی جی. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دھرنے کے شرکا کچھ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل بٹ رضوی، کہاں سے آئے ہیں؟ گجر خان سے. گجر خان سے آئے ہیں. تو کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ بس انشاءاللہ ہم جو میرے محترم نے جو اعلان کیا انشاءاللہ ہم اس پہ کیا اعلان کیا ہے؟ کہ انشاءاللہ فلسطین کے حق میں انشاءاللہ ہم آواز بلند کریں گے، جو مطلبات میرے انشاءاللہ پورے کریں گے انشاءاللہ. آپ کے اپنے کیا ذاتی جذبات؟ ہم تو آگے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جب تک اگر مجھے جہاں آرڈر حکم کریں گے ہم جائیں گے، وہاں انشاءاللہ جائیں گے. اچھا انشاءاللہ ویسے چلانے کے لیے کوئی بھی کہہ لیں کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لہو بھی دینا پڑتا ہے. تو آپ کے کیا جذبات؟ انشاءاللہ جی ہم نے جیل بھی کاٹی ہے. اچھا الحمدللہ جی ماشاءاللہ. ہم بکر جیل میں 2 ماہ جیل کاٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، کس مقصد؟ اسی مسئلے میں. اچھا آج سے ہم لوگوں کو رہا کیا تھا انہوں نے، تو ہمیں انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. اچھا یہ ہمارے میر صاحب. اچھا جی کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آتے تھوڑے آگے جی. اچھا ناصر بھائی ہے جی، ناصر رضوی صاحب ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں گجر خان سے. یہ بھی گجر خان سے. اچھا تو میں جیسے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ کے اپنے جذبات کیا ہے، کیا سوچ کے آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اقصا کے لیے تو جان بھی قربان، اچھا کو شہید کر رہے ہیں، اچھا عورتوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں. تو ہم کس چیز کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ ہمیں وہ جہاد تو ہم پہ فرض ہو چکا ہے. یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، یہ بچوں کے ساتھ ظلم کیا، اس سے بڑا دکھ ہوا ہے، دلی دکھ ہے. اچھا انشاءاللہ میں آزادی لے کر ان سے چھوڑوں. کیسے ذاتی لے ملک جو ہمارے لیے حکمران ہے، جو ہاں یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. نہیں
नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? कोशिश पूरी करेंगे हम इंशाल्लाह। असल में इनके कंट्रोल में नहीं है कुछ, इंशाल्लाह करके हम सबको खुद उठना होगा। बिल्कुल उठे तो हम साथ आए ना जी, बात ये इनका कहना है जी, हम उठे हैं तो आए हैं। चले जी, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनीब अली। जी, मोहम्मद मनीब अली। कहाँ से आए? हम गुजर खान से। ये भी गुजर खान से आए हैं जी भाई। मुझे लगता है पूरा ग्रुप जी गुजर खान का है। तो मुझे ये बताएं, क्या जज्बात है आपके? बस जज्बात ये है कि हम आए जी, शहादत के लिए आए हम। शहादत के लिए आए हैं, शहादत का जज्बा लेके आए हैं। ये जी ने तो सीधी सीधी बात बता दी है कि शहादत के लिए आए हैं और शहादत का जज्बा लेके आए हैं। हमारी तो आशा है कि बस बॉर्डर खोले जाए तो हमें फलस्तीन भेजा जाए, बस बॉर्डर खोले जाए और हमें फलस्तीन भेज दिया जाए बस। अच्छा, बॉर्डर खोले और फलस्तीन आपको भेज दिया जाए। बस फिर तो आगे हम जाने, हमारा काम जाने। हमारे मेरे मोहतरम ने भी यही कहा था कि आप ना कुछ करें, सिर्फ तरीके लब्बैक को हुक्म दें कि वो फलस्तीन जाए और उनके हक के लिए कुछ बोलें। हमें सिर्फ इतना कह दिया जाए कि आप फलस्तीन को, आप बॉर्डर खोल दिया जाए, आप फलस्तीन जा सकते हैं। बाकी इमरान है, ये कुछ ना कुछ आवाज उठाएंगे, हमले इकदाम करेंगे। बहरहाल हमने देखा कि इनमें से किसी के अंदर कोई ऐसी जरूरत नहीं हो सकती। साथ भाई ने हमारे आज इधर धरना दिया है, बैठे हैं, अपने मुतालबात सामने रखे हैं। तो 2-3 के बड़े मुतालबात हैं, हालांकि ये मुतालबात कुछ भी नहीं, बिल्कुल मामूली छोटे, मतलब कि जिसे कहते हैं ना छोटे मामला। वो हाथ नीचे रखें। वो बाकी जो है कि इनको चाहिए कि ये उन मुतालबात को माने, उनकी मदद करे। हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए रास्ता खोल दिया जाए, हमें वहाँ पहुँचा दिया जाए। ये भी कहते हैं जी रास्ता खोले। जी जनाब राय साहब, क्या जज्बात है आपके? सर हमारे क्या जज्बात होने, हमारी गवर्नमेंट सूद के चक्कर में पड़ी हुई है, हमें जलील कर रही है, अच्छा, हमें परेशान कर रही है। अच्छा, फलस्तीन हमारा हक है, मुसलमानों का राइट है। शहबाज शरीफ साहब को मीडिया पे आके ये बयान देना चाहिए कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, उनकी फौरी हमायत का ऐलान करना। क्या वजह, क्यों नहीं ये बयान देते? सर ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो अमेरिका कहता है। खान साहब को, सूदखोर को देख लें, इमरान खान सूदखोर को देख लें, वो क्या कहता है अमेरिका ने गवर्नमेंट कराई है जी। आगे नवाज शरीफ जब उतारा गया था सूदखोर, तो तब क्या कहा गया था? वो कहता था अमेरिका ने गवर्नमेंट कराई है। आपके सामने है, आप खुद बेहतर जानते हैं, बेहतर जानते हैं, हम क्या कहें आप। चले हमें ये बताएं कि ये जैसे सब ने अपने जज्बात का इजहार किया, आपके क्या जज्बात है? हमारे ये जज्बात है कि हमारी फौज को चाहिए, हमारे सिपा सलार को चाहिए, कर सकते हैं, इमदादी कार्रवाई कर सकते हैं। हम तो लड़ नहीं सकते, राइफल हम नहीं चला सकते, लेकिन हम जो जितना हो सका हम अपनी फौज के शाना बेशाना खड़े होंगे। सबसे पहले हम तो कहते हैं जिहाद का हम ऐलान करते हैं, लेकिन पहले हम अपने पाकिस्तान की फौज से मार खाएं बॉर्डर पे, फिर जाके किसी और फौज से मार खाएं। फलस्तीन पहुंचने से पहले हम शहीद हो जाए। ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले तो हमारी फौज हमें मार दे, फिर हम अगर जख्मी होकर अगर निकल भी जाते हैं तो अगली फौज से मर जाए, तो फलस्तीन तक हम पहुंच ही ना पाए। सर शहादत के हैं, शहादत का जज्बा लेकर आए हैं। शहादत का जज्बा जो है ना मुसलमान का ईमान है, वो हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं एक शहादत की मौत लूं। अच्छा, ठीक है, मरना तो है ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे बाबा जी कहते थे क्यों ना चाजदा मरिए, चाजदा मरिए। जबर जाना तो है ही है, तो क्यों ना हुजूर के नाम पर या इस उम्मत मुसलमान के लिए जो है ना सीने पे गोली खा के जाया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इसराइल की हुकूमत को सपोर्ट न किया जाए। इसकी जितनी भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी हम बेचते हैं, ये इधर चल रही हैं पूरे पिंडी इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में, इनको बुला किया जाए। इससे जो सपोर्ट होती है इसराइल की फौज को, उस फौज की ताकत पे वो हमारे भाइयों फौज आपकी अच्छी है, प्रोडक्ट उनकी बंद हो, लेकिन क्या क्या हम उनका बंद करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये मोबाइल बंद करना चाहिए, ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है, करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर उनका है, हर चीज उनकी है। तो कोई अपने जज्बात बताएं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए उनके लिए जान भी दे सकते हैं, हमारी जान भी उनके लिए। खामोश बैठे हैं, अच्छा, पूरी कौम जो है ना खामोश बैठी है। सिर्फ इस टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काम कर रही है और कोई पार्टी काम नहीं कर रही। सही, नून लीग है वो अपनी सियासत चमका रही है। वो तो सियासी जमात है ना, मजहबी जमात है। जिस तरह ये तरीके लब्बैक हमारी मजहबी जमात है ना, इस मौके के ऊपर ना सियासी हो मजहबी हो वो सब बराबर है। मुसलमानियत एक ऐसी चीज है, सब बराबर है। अच्छा, कुरान एक ऐसी चीज है, इसमें सब बराबर है। मुझे ये बताएं, ठीक है, कुरान पे, हदीस पे, दीन पे तो हर बंदा कुर्बान है ना, ये तो बात पहले है। मुझे ये बताएं कि अब जंग लगी को तकरीबन 1 साल हो गया या 7-8 माह हो गया, क्यों जी इतने ही हुए हैं? 9 माह हो गए, तो हम लोग लेट क्यों हैं? जी लेट आज क्यों 9 माह के बाद आज हम फैजाबाद क्यों खड़े नहीं है? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये महीना कौन सा,
ये महीना मुहर्रम का जी, ठीक है, इसी में करबला हुई थी और इसी में ये भी करबला चलेगी अब। सही, ठीक है, ये सारे खड़े हैं ना, ये सारे भाई खड़े हैं, खत्म नबूवत, ये सारे भाई खड़े हैं, खत्म नबूवत, ये कोई पीडीआई का जिस तरह यूथिया होता है, ये वो बंदा नहीं है, ठीक है, ये हर बंदा, हाथ नीचे रखिए, ये हर बंदा जो है ना, ये काम करने वाले बंदे हैं। इनको आप बोलेंगे ना यहाँ से उठो और 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप कराची आ रहे हो, चुप करके चल जाएंगे, बोरिया बिस्तरे बांध के आएंगे। ये कहते हैं जी जो टीएलपी के लोग हैं ना, ये कोई पीटीआई के नहीं है, ये नून लीग के नहीं है, ये बोरिया बिस्तरा बांध के हैं और मरने के लिए तैयार है। वो आपके सामने है। हम चाहते हैं कि जिस तरह ये पूरी दुनिया हमेशा अमन की बात करती है, सही, वहाँ पर दुनिया के अंदर, हर ममालिक के अंदर हर कोई कहता है कि अमन होना चाहिए। हम भी इसी चीज के ऊपर आए हैं कि अमन होना चाहिए। उनके मुल्कों में अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो उसका दिफा करते हैं जी। हम चूंकि एज ए मुसलमान हैं और इस्लाम के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की एक जान एक जिस्म होता है। कहीं भी किसी जगह पे भी हमारे किसी मुसलमान को तकलीफ होगी तो उसके लिए हम इंशाल्लाह आवाज बुलंद करेंगे। और ये आवाज बुलंद करना असल में ये जो आप कर रहे हैं, ये एक जमहूरियत है। हमारे ऊपर ये जमहूरियत जो मुसल्लत हो चुकी है, इसके हक में ना शुरू से हमारे बुजुर्ग थे, ना हम में ना कभी होंगे इंशाल्लाह। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब एक जमहूरियत के तहत हो रहा है और हमें ये पसंद नहीं है। हम यहाँ इरादा ये लेकर आए हैं कि चूंकि इस मुल्क का ये निजाम चल रहा है, हमने निजाम को ये बताना है कि भाई सुनो, तुम्हारे निजाम के मुताबिक हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है। हमारा जो निजाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद है, हमारा मकसद जिहाद है, हमारी शान जिहाद है। हम शुरू से जिहाद वाले हैं, ग़ज़वा बदर से लेकर आज तक देख ले, जिहाद से मुसलमान की शान बढ़ी है और जिहाद हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम रैली की सूरत में जिहाद के बारे में बताने हैं कि हम जिहाद के लिए तैयार है, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई गलत बात ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो, कुछ भी ना हो। हमारा मुल्क प्यार से, हमने जब से आए वहां लियाकतबाद से, लाहौर से लेकर यहाँ तक एक पौधे को भी नुकसान पहुंचा तो इस मीडिया के जरिए बता हम जिम्मेदार है। नहीं जी, ये तो शुरू से बात है, ये जब भी टीएलपी वाले आए कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और रही बात जिहाद की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो टीएलपी वाले आए हैं, ये हुकूमत की आंखें और कान खोलने के लिए आए हैं कि भाई जागो, हमारी आवाज सुनो। और इस माइक का भी यही मकसद है, ये भी एक जिहाद है। मेरा भी यही मकसद है कि इस हुकूमत तक ये आवाज पहुंचे। ये इंटरनेशनल पे जाता है, हमारी जो वीडियो है ये इंटरनेशनल हर मुल्क में जाती है, ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए। हमारा भी यही मकसद है कि ये जो आवाज है आलमे बाला तक पहुंचे, अमेरिका तक पहुंचे, हर जगह पर पहुंचे कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो क्या है, मुसलमान क्या चाहते हैं। मुसलमान अमन जो आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में नहीं। जी जनाब, जी ये बिल्कुल सही है, हज़रत इब्राहिम इस्लाम का वाक़या है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन पे निकले हुए हैं कि हमने जिहाद करना है। हुकूमत को हम खुला पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क है, अगर आप ऊपर बैठ के, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप मस्त होकर बैठ जाए, नहीं, आप अपनी राय को देखें। कहीं भी किसी अगर जुल्म हो रहा हो आप देखें, क्योंकि इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क का कुछ तो सामने नजर आना चाहिए ना। ये तो कोई बात नहीं, इस्लामी मुल्क हो भी इस्लाम के नाम पे बना और हमारे मुसलमानों को वहाँ पे शहीद किया जाए और मुसलमानों की हिस्से लुट रही हो और हम यहाँ याशियाँ कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा और हम चलने भी नहीं देंगे। नाम क्या बताया? मोहम्मद शफकत कादरी। मोहम्मद शफकत कादरी साहब का सबसे बड़ा बेस्ट जो कह लें कि उनका माइंड है, जो उनकी मोहब्बत है, वो ये है कि मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए। अमन से बढ़कर कोई पैगाम नहीं। पहली बात ये है कि 9 माह से जो फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उस पर ना कोई मुल्क बोला है, ना रियासत में कोई ऐसी चीज देखने को मिली है कि जिसकी वजह से अमेरिका को या इसराइल को लगा हो कि वाकई पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। हमारे यहाँ आने का मकसद, वाहिद मकसद यही है कि फलस्तीन पर होने वाला जुल्म फिल फौर रोका जाए, जो भी हो सके। हमारे पास जो था ना, हम लेकर आ गए और रियासत के पास जो है ना वो लेकर पहुंचे। और फिर इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करने का मकसद यही है कि उनकी जो आमदन पाकिस्तान से जाती है ना, जो उनको जाकर मिलती है, फिर ये तो मैंने भी यही सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले उनकी तो ये हर किस्म की उन्हीं की प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमें मोबाइल, सॉफ्टवेयर, ये सब उन्हीं का है। अच्छा, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे अभी वो भाई शौकत साहब चले गए, बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया, अमन का पैगाम। इसके हवाले से मुझे बताएं कि अमन ये है कि जंग बंद होनी चाहिए, मुसलमानों पे जुल्म खत्म होना चाहिए, तो अमन से हम सब लोग। आपको पता है कि
बड़ी ईद के बाद जो नेशनल असेंबली, अच्छा ठहरे, आपका भी नेशनल असेंबली में जो उन्होंने वो करारदाद उठाई थी, जी 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 जी, वो इंसानियत के नाम पर, इंसानी हुकूक पर, वो उनको याद आ गई कि पाकिस्तान में मर्जियों को कुर्बानी नहीं करने दी गई। ठीक है जी, क्यों करने नहीं दी गई? क्योंकि वो काफिर हैं। अगर वो कुर्बानी करते हैं तो वो मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। जो एक मुसलमान कुर्बानी कर सकता है। सर जी, ये हुकूमती सतह पर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हुकूमती सतह पर जो इसराइल का वज़ीर आज़म है ना, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे। देखिए, मुसलमानी है ना, आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। मुसलमान होने के नाते से हमारा ये हक बनता है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की, वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, सारी बात हमारे भाई हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस्म के किसी हिस्से को अगर तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। सही बात। तो ये है कि अगर उन मुसलमानों को तकलीफ हो रही है तो हमें यहाँ पे इधर हमें तकलीफ हुई है, इसलिए हम बाहर निकले हैं। ये कह रहे हैं जी कि जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, पूरे हाथ को तकलीफ होती है। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि अगर उनको तकलीफ है तो मुझे यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हुज़ूर इस्लाम का फरमान भी है कि मोमिन जो है वो जिस एक मोमिन को अगर दर्द हो तो मोमिन की पहचान ये है कि एक मोमिन को दर्द हो रहा तो दूसरा मोमिन इसको महसूस करता है। इसको उठा के देख लिया जाए तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप खुद बनफ्स नफीस 27 जंगों में तशरीफ लेकर गए। अभी भी माइक से ऐलान हो रहा था कि कुरान पाक के अंदर 27 टैक्सों से तैयार होने वाले, मैं एटॉमिक एनर्जीज के विजिट करके आया हूँ, मियाँ वाली चौक रोड के अंदर एटॉमिक एनर्जी देख के आया हूँ। इसके अलावा मैं हैरान रह जाता हूँ। इसी के अलावा मैं CMH पिंडी में चले जाएं, मैं हैरान रह गया हूँ कि गरीब हमारे फैसलाबाद का लाइट हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट को बिस्तर नहीं मिलता, और CMH के अंदर जाकर देखिए इतना आलीशान निजाम, हम परेशान। फिर हम कहते हैं नहीं यार कोई नहीं, मुल्क की दिफाई निजाम मजबूत होना चाहिए। अगर मुल्क की दिफाई निजाम मजबूत होना चाहिए, मेरे आपके पैसे को जमा कर करके शाहीन अब्दाली गौरी बनाए, जंगाल लगाने के लिए बनाए, किस लिए बनाए? अगर वहां पर ये बाकी अगर भलाई चल रहा है ना, यही टॉपिक ये असल में ना, ये भी आपकी बात ठीक है। जब आप अमन की बात करते हैं तो ये भी होता है ना कि अगर देखें हम इधर से उन पे गोरी छोड़ते हैं या हम टक्कर लेते हैं तो वो हम पे लड़ाई करेंगे। इन लोगों की कोशिश देखिए, जो सियासतदान होता है ना, मेरी बात सुन ले, सियासतदान की कोशिश होती है कि यार किसी तरीके से मसला हल किया जाए। जंग जो है ना, मेरी बात सुन मेरे भाई, अब तक हुआ है ना, हम बहस नहीं, मैं आपके साथ बहस नहीं करने आया। जो नाज़रीन, जो हुकूमतें होती हैं, जो बादशाह होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि अपनी रियाया को भी बचाएं और जहां पर जंग का निज़ाम है उस जंग के निज़ाम को भी खत्म किया जाए। ये नहीं कि वहां पर जंग लगी है, 10 हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं तो 100 हम इधर भी मरवा लें, ऐसा नहीं होता। तो जो वक्त आला होते हैं, जो कह लें कि जो काजी होता है, उसकी कोशिश होती है। आप जब ये कह रहे हैं मैं कराची से निकलने लगा था तो 105 मुझे टेम्परेचर था, उसके बावजूद इस बीमारी की हालत में भी यहाँ पर आया। 103 बुखार के अंदर मैं ट्रेन में बैठा हूँ और मेरी फैमिली में मेरे बच्चे भी बीमार थे, उनको छोड़ कर आए। क्यों अकेले आए? जी, अच्छा, अगर बच्चे मेरे बड़े होते तो मैं उनको भी लेकर आता। जबरदस्त, सही है। बच्चा मेरा भी है कि 1 साल का है। सही है। बाकी है और साथी तो आए हैं वहाँ से कराची से, और बहुत सारे इधर हो बादशाहों की दुनिया में ऊंचा हमारा नाम।